Good morning, students. We are live again. Now it's time to continue the chapter number 7, The Great Uprising of 1857. I am talking, we are reading about the social economic causes and what are the causes for the revolt of 1857. Now the first one is, now the another one is socio religious causes, यानी सामाजिक और धार्मिक जो कारण थे उसके बाद कारण हम बात करेंगे. Social reforms made by British were taken as interference in the social, so that we have to know that about social reform made by the British were taken as interference in the social affairs. The upper caste looked at it as a threat to the established social structure. कहा जाता है कि सोशल रिफॉर्म यानी सामाजिक जो थे ब्रिटिशर्स के द्वारा जो बनाया गया या द ब्रिटिशर्स इंटरफेरेंस इन द सोशल अफेयर्स ऑफ द इंडियन पीपल एंड द अपर कास्ट पीपल looked at as a threat. The effort of missionaries to convert people to Christianity also angered the Indians. कहा जाता है कि जो इफर्ट हुआ मिशनरीज में इंडियंस को मिशनरीज में कन्वर्ट करने का, इससे भी लोगों को बहुत गुस्सा हुआ. इससे भी लोग बहुत गुस्सा हुए. द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन अंडरमाइंड द ट्रेडिशनल टीचर्स एंड टीचिंग मेथड इन इंडिया. अब जो वेस्टर्न एजुकेशन था, जब उसके इंट्रोडक्शन से व्हेन द वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, इट चेंज्ड the values and the method of the Indian teachers and the philosophers. The introduction of railway, telegraph and post were viewed with suspicions. कहा जाता है जो इंट्रोडक्शन हुआ रेलवे, टेलीग्राफ और पोस्ट जो हुए उनको हम सस्पिशंस के तौर पे भी देखते हैं. The British judicial system introduced the principle of equality which undermined the presence of caste system in India. British judicial system ने क्या किया, equality मतलब British judicial system also introduced equality and it was not accepted by the upper caste people of the Indian society. The British looked down up Indians and followed a policy of racial discrimination and separate themselves for the Indian society as superior. ब्रिटिशर्स ने क्या किया, लोगों को इंडियंस को रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी उनके रंग के आधार पर उनको ट्रीट किया और उनको ये दिखाया कि दैट दे आर द सुपीरियर्स फ्रॉम द अदर वन. मिलिट्री कोर्सेज the Indian sepoys were considered as the inferior to their European counterparts. Promotion and award were only for the white races. सूबेदार was the highest post for the Indian soldiers. कहा जाता है कि जो सूबेदार थे सिर्फ उन्हीं को क्या किया जाता था, सिर्फ सूबेदार को ही. देर आर सो मैनी इंडियन पीपल्स हु ज्वाइंड as a British army as a soldier, but their promotions and the awards were only reserved for the Britishers, not for the Indian soldiers. In British army, Subedar is the higher post for the Indian soldiers. Indian soldiers were paid much less salary in the comparison of or in the compare of the Britishers that it was not possible to maintain their family or their household any works or any other things for the Indian soldiers with less salary. अपर क्लास रिक्रूट्स वर डेलिबरेटली गिवन टू लो पोजीशंस. अपर क्लास जो रिक्रूटर्स होते थे उनको हमेशा लो पोजीशन दिया करते थे और उनको ये दिखाते थे कि दैट दे आर द सुपीरियर फ्रॉम द अनदर वन. जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट वाज पास्ड इन 1856 दैट मेड इट कंपलसरी फॉर ऑल ट्रूप्स फॉर सर्व ओवरसीज. जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट पास हुआ 1856 में. इसमें यह कह दिया गया कि जितने भी सारे ट्रूप्स होंगे उनको क्या किया जाएगा, दूर दराज लड़ाइयों के लिए भेजा भी जाएगा. इट हर्ट द इंडियन सेंटीमेंट as it was believed that overseas travel would lead to a loss of one's caste. कहा जाता था कि वो समुद्र के पार भेजा जाता था, तो इससे क्या हुआ, the feeling of the Indian sentiments were badly hurted. That at that time it was followed or it was believed that the overseas travel would be lead to a loss of one's life. Awadh annexation led to disbanding of its army. अवध एनेक्सेशन जो ब्रिटिशर्स के जरिए हुआ उससे ब्रिटिश आर्मी बहुत पावरफुल तो हो गई लेकिन इंडियंस अगेंस्ट हो गए उनके. Now time to the immediate cause. Immediate cause, there was an atmosphere of distrust and suspicions against the British all over the country. अब एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनकर तैयार हो गया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो कि पूरे कंट्री में फैल चुका था. अ माइनर इशू कुड एक्ट एज अ स्पार्क. अगर थोड़ी सी कोई भी इशू होती थी तो जैसे एक चिंगारी काम करती है उसी तरीके से काम कर रही थी. Under these circumstances, a rumor is spread that the cartridge to be loaded in the new Enfield rifle was greased with the fat of cows and pig. इसी के बीच एक न्यूज़ आई कि जो कार्टेज आई है, जो गोली आई है नई इनफील्ड राइफल बंदूक में भरने की, उसका जो कार्टिलेज है वो क्या है,
गाय और सुअर के मांस से बना है, और दिस कार्टिलेज वाज आउट टेक आउट फ्रॉम द माउथ when you load the cartilage in the rifle. So this hurt the sentiments of the Indian sepoy very badly. In 1857, Mangal Pandey, a sepoy of Barakpur, refused to use the cartilage and attacked his senior officers. 1857 में मंगल पांडे जो कि एक बैरकपुर के सिपाही थे यानी सिपाही थे, उन्होंने इस कार्टिलेज को यूज़ करने से मना कर दिया और अपने सीनियर ऑफिसर्स के ऊपर अटैक कर दिया. ही वॉज हैंग टू डेथ ऑन 8 अप्रैल. उनको फांसी की सजा दी गई 8 अप्रैल को. ऑन 9 में 85 सोल्जर्स इन मेरठ ऑल्सो रिफ्यूज टू यूज द न्यू राइफल एंड वर सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट. ऑन 9 मई को 85 सोल्जर्स जो कि मेरठ के थे, मेरठ बैरक के, उन्होंने वहाँ भी क्या कर दिया, इस न्यू राइफल को यूज़ करने से मना कर दिया और उनको भी क्या कर दी गई, आजीवन सजा दे दी गई. लीडरशिप एंड स्प्रेड ऑफ रेबेलियन. द रेबेलियन ग्रेजुअली स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द कंट्री. अब रेबेलियन जो विद्रोही थे वो देश के कोने कोने में फैल गए. वेरियस रेजिमेंट्स म्यूटिनाइड एंड मार्च टू ज्वाइन अदर ट्रूप्स एट दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ. बहुत सारे अलग अलग रेजिमेंट्स हुए जो दिल्ली, कानपुर और लखनऊ में फैल गए. द पीपल इन द टाउन एंड विलेज ऑल्सो रिवोल्टेड एंड रैलीड अराउंड लोकल लीडर्स एंड जमींदार्स. जो गांव के लोग थे, शहर नगर के लोग थे, उन लोगों ने क्या किया, रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया लोकल लीडर्स और जमींदार के अंडर में. फॉर देम इट वॉज एन अपॉर्चुनिटी टू असर्ट देयर अथॉरिटी. अब ये उनके पास एक बहुत बड़ा मौका था कि वो अपनी अथॉरिटी को यानी अपने अधिकारों को फिर से वापस पा सकें. Nana Sahib, the adopted son of Peshwa Bajirao II, gathered armed forces and expelled the British garrison from the city of Kanpur. नाना साहिब जो कि पेशवा बाजीराव के पेशवा बाजीराव सेकंड के अडॉप्टेड सन थे, उन्होंने क्या किया, आर्मी को गैदर्ड किया और ब्रिटिशर्स को वहां से भगा दिया. गैरिसन मीन्स अ ग्रुप ऑफ ट्रूप्स. ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द गवर्नर अंडर द मुगल एम्परर. उन्होंने क्या किया, अपने आप को मुगल एम्परर के अंडर में गवर्नर घोषित कर दिया. बिरजिस कादर प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज अ नवाब ऑफ इन लखनऊ. बिरजिस कादर ने क्या किया, अपने आप को लखनऊ का नवाब घोषित कर दिया. ही वॉज द सन ऑफ द डिपोस्ट नवाब वाजिद अली शाह. ये किसके बेटे थे, बिरजिस कादिर, जो उन्हीं नवाब वाजिद अली शाह के जिनको ब्रिटिश ने क्या किया था, देश निकाला कर दिया था. ही ऑल्सो एक्नॉलेज द सुजर्निटी ऑफ बहादुर शाह जफर. सुजर्निटी मीन्स अ सिचुएशन वेयर अ पावरफुल रीजन और पीपल कंट्रोल अ वीकर स्टेट. सुजर्निटी का मतलब होता है कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें क्या होता है, अ सिचुएशन where a powerful region or people control a weaker state. His mother Begum Hazrat Mahal actively organized the uprising against the British. Rani Lakshmi Bai joined the rebel sepoys in Jhansi. She fought the British also with Tatya Tope, who was a great general of Nana Sahib. Main events of the revolt. There was a rebellion in the Meerut cantonment on May 9, 1857. It marked the beginning of the revolt. कहा जाता है कि मेरठ कैंटोनमेंट में 9 मई 1857 को जो फर्स्ट रेबिलियन स्टार्ट हुए या फर्स्ट रेबिलियन मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ, इट मार्क द बिगनिंग और इट वॉज द बिगनिंग ऑफ द रिवॉल्ट. द इंडियन सिपाही इन मेरठ मर्डर्ड देयर ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड ब्रोक ओपन द जेल. On May 10th they marched to Delhi. The Indian sepoys murdered the Indian sepoys in the Meerut murdered their British officers and broke the jail. On 10th May, all soldiers marched to Delhi. Capture of Delhi. In Delhi, the mutineers were joined by the Delhi sepoys and the city came under the control. दिल्ली में क्या हुआ, जो म्यूटिनर्स थे उन्होंने क्या किया, इंडियन सिपाहीज जो मेरठ के थे उनको ज्वाइन कर लिया और दिल्ली को अपने कंट्रोल में कर लिया. ऑन 11th में द सिपाही प्रोक्लेम्ड द अगेंस्ट एगिंग बहादुर शाह जफर द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान. 11th में को जो सिपाहीज थे यानी जितने भी सिपाही थे जो विद्रोह करके वहाँ से निकले थे, उन लोगों ने क्या किया, अपने बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का एम्परर घोषित कर दिया. What are the centers of the revolt? The revolt spread over the entire area from the neighborhood of Patna of the border of Rajasthan. अब वो जो रिवॉल्ट था वो पूरा पटना से लेकर के अपने आसपास के सारे इलाकों में राजस्थान तक पहुंच गया. द मेन सेंटर ऑफ द रिवॉल्ट डिस्कस बिलो. In the Lucknow, the revolt was handled by Begum Hazrat Mahal. In Kanpur, Nana Sahib led the revolt. In Jhansi, Rani Lakshmi Bai led the revolt. And in Bihar, Kunwar Singh led the Indian rebellion in Bihar. Okay, so students, our next heading is separation of the revolt. यानी किस तरीके से उस रिवॉल्ट को सप्रेस हुआ, यानी वो किस तरीके से फैला. द ब्रिटिश गवर्नमेंट कम आउट विथ ऑल द पावर्स टू सप्रेस द रिवॉल्ट. यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, अपनी सारी ताकत लगा दी उस रिवॉल्ट को रोकने में और उस रिवॉल्ट को दबाने में.
The Sepoy fought the battle with their limited strength. The revolt of 1857 lasted more than a year. भारतीय सिपाहियों ने क्या किया, अपनी पूरी ताकत लगा दी उस लड़ाई को लड़ने में, और ये जो विद्रोह था 1857 का लगभग ही 1 साल तक चला। थाउजेंड ऑफ इनोसेंट पीपल वर मैस्कर्ड एंड 100 वर हैंग। बहुत सारे हजारों लोगों को मारा गया और बहुत सारे लोगों को फांसी भी दी गई। बहादुर शाह जफर टू वॉज अरेस्टेड एंड डिपोर्टेड टू रंगून, नाउ यंगून इन म्यांमार। बहादुर शाह जफर को भी अरेस्ट कर लिया गया और उनको डिपोर्ट कर दिया कहाँ पर, ये रंगून में, जो कि आज म्यांमार है। यंगून नाम है उसका। वेयर ही डाइड इन 1862, जहाँ पर उनकी मौत 1862 में हो गई। हिज सन्स वर शॉट डेड बिफोर हिज आई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने मार दिया गया।